Good morning, students. We are studying the chapter Discovering Tut. The saga continues. This is page number 25 of our textbook, Hornbill. In previous paragraph, we have read that Carter had a very little choice. What he did, Carter had to chisel away the body to free the mummy from the coffin, as it was stuck with the due to the reasons the body was stuck with the coffin, gold coffin. So what he did, he had to chisel away the body. Okay, so after that we have read that he had to separate all the adornments and all the things that he was wearing. So he removed the head of the mummy and to take out the all the things, all the adornments which he had worn over his body. So after रिमूविंग ऑल दी थिंग्स, जो भी उसने माला और ये सब पहना हुआ था गले में, तो बॉडी उसकी गर्दन को फिर अलग कर दिया गया. और उसके बाद देन व्हाट ही डिड, ही रीअसेंबल दैट हेड ऑफ द ममी. आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट he found that archaeology has changed, but when the Carter, he made a discovery that the breastbone and the ribs of the body of Tut were missing when he did the archaeology after 40 years of Carter's discovery. So what they found, the people, they found that the breastbone and the ribs were missing from the body of Tut. So we have to start from this paragraph. Today, diagnostic imaging can be done with computer tomography or CT. This very common name, CT scan, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी. सो आज की डेट में आप पहले के ज़माने की बात कर रहे हैं और प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं विलियम्स, और वो कहते हैं कि आज की प्रेजेंट टाइम में डायग्नोस्टिक जो है इमेजिंग, इट कैन बी डन वेरी इजीली. हाउ? विद द हेल्प ऑफ CT स्कैन. अब CT स्कैन होता क्या है? बाय विच hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. So what happens? So many X-rays in a cross section are put together like slices of bread. जैसे bread की slices रखते हैं एक के ऊपर एक, in the same way the X-rays reports जो भी होती है X-rays, उनको एक के ऊपर एक रख दिया जाता है और इससे क्या हो जाता है? एक 3-dimensional वर्चुअल बॉडी हो जाती है. ईच एंड एवरी पार्ट का जब एक्सरे किया जाता है तो वो जो पतली पतली जो एक्सरेज हैं, एक्सरे रिपोर्ट्स को एक के ऊपर एक रख के इतनी सारी जो है एक वर्चुअल बॉडी तैयार कर दी जाती है, जिससे अब पर्सन का पूरा हम उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं. वट मोर कुड अ CT स्कैन कैन रिवील ऑफ टट दैन द एक्सरे. अब CT स्कैन क्या रिवील कर लेता है इससे ज़्यादा? वट वुड इट कैन? Now they are going to answer that what more would a CT scan reveal of Tut than the X-ray. अब जो विलियम्स है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब इससे ज़्यादा और क्या रिवील करेगा. एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन. एंड लेट्स सी क्या वो इन 2 क्वेश्चंस को आंसर कर पाएगा. व्हाट इज़ दिस बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट. लिंगरिंग होते हैं जो अभी तक ऐसे ही पड़े हैं. लिंगरिंग मीन्स अधूरे, जो क्वेश्चंस अभी तक जिनका आंसर नहीं मिल पाया है, अस्पष्ट हैं, जो अभी तक. लिंगरिंग का मतलब ऐसे होता है लटके पड़े रहना, मीन्स विदाउट एनी आंसरिंग. ओके, सो अबाउट हिम एंड व्हाट आर दीज क्वेश्चंस? हाउ डिड ही डाई, एंड सेकंड क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ. सो दीज आर द 2 बिग क्वेश्चंस that the narrator, the writer you can say, wants to know, and all the people of the world want to know. King Tut's demise was a big event even by the royal standards. It was a big event and by the royal standards. Royal standard means एक बहुत ज़्यादा royal standards का था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा event है, एक छोटी मोटी बात नहीं है ये. He was a very powerful and a very great king. Although he died so early, but he was in the short period of time he has achieved such a greatness like other kings of his time, of his family. He was the last of his family line, and his funeral was the death rattle of a dynasty. So he was the last one of his family, and his funeral, it was the death rattle of a dynasty. अब rattling क्या होता है? rattling होता है कि जिसे हम कहते हैं
शॉर्ट लाउड नॉइसेस, जैसे खड़खड़ाती है कोई चीज़। तो यहाँ पर अब रैटलिंग का मीनिंग खड़खड़ाहट से नहीं है, नॉइस से नहीं है। यहाँ पर रैटलिंग मीन्स उस जो पूरी की पूरी जो फैमिली थी उसके लिए एक बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस थी ऑफ अ डायनेस्टी। इनकी जो फौरा डायनेस्टी थी तो उसके लिए फेरो डायनेस्टी की सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस इसने क्रिएट कर दी इनकी डेथ ने, क्योंकि ये अनटाइमली डेथ थी। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर। एंड द पर्टिकुलर ऑफ हिज पासिंग अवे, दैट हाउ डिड ही पास अवे, हाँ कैसे उनकी डेथ हो गई, एंड इसके आफ्टरमैथ मीन्स डेथ के बाद के रिजल्ट्स भी सब अनक्लियर हैं कि इनके जाने के बाद क्या हुआ। तो ना तो इनकी डेथ के बारे में पता लगा और ना ही आफ्टरमैथ्स मीन्स उनकी डेथ के बाद के जो आफ्टर डाइंग, मरने के बाद के जो कोई भी बातें थी वो सब के सब अनक्लियर हैं। नाउ अब दोबारा नरेटर जो है राइटर स्टोरी में बताते हैं। अभी ये प्रेजेंट की बात चल रही है, अब फिर पास्ट में चली जाएगी स्टोरी। मीन्स अब नरेटर राइटर पास्ट के बारे में बता रहे हैं। एमेनहॉटेप III, टट्स फादर और ग्रैंडफादर वाज अ पावरफुल pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18 dynasty's golden age. So Amenhotep III, he might be the father or grandfather of Tut. He was a very powerful pharaoh who ruled for 4 decades एट द हाइट ऑफ द 18 डायनेस्टी। और किस टाइम में ये गोल्डन एज थी 18 डायनेस्टी की गोल्डन एज थी, उस टाइम इन्होंने रूल किया है। एमेनहॉटेप ये इनके या तो फादर थे या फिर ग्रैंडफादर थे। हिज सन एमेनहॉटेप IV सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। नाउ हिज सन एमेनहॉटेप IV, एमेनहॉटेप III है, अब उनके बेटे कौन है? एमेनहॉटेप IV। ही सक्सीडेड हिम मीन्स उनके बाद उन्होंने अब सक्सीड किया उन्हें, मीन्स उनका जो राज्य था उन्होंने अब उसको संभाला। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री एंड इट ऑल्सो इनिशिएटेड द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। और इजिप्ट की हिस्ट्री में इन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। द न्यू फेरा promoted the worship of Aten. The sun disk changed his name to Akhenaten or the servant of Aten. So अब Amenhotep IV ने क्या किया? He was the new pharaoh who promoted the worship of Aten. अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रमोट किया मीन्स सबको, जिसे हम कहते हैं कि एनकरेज किया पीपल सबको कि वो वर्शिप किसको करें? गॉड एटेन को। ठीक है, उनके अब गॉड थे ये एटेन। सो अब उन्होंने सबको प्रमोट किया, इन गॉड की पूजा करने के लिए सबको प्रमोट किया। द सन डिस्क, ये सन डिस्क थे। एंड द चेंज इज नेम टू अखेनाटेन। अब उन्होंने एमेनहॉटेप ने अपना नेम क्या चेंज कर दिया? अखेनाटेन मीन्स अटेन, इन गॉड को वर्शिप करते तो इन्होंने अमेनहॉटेप से अपना नेम चेंज करके अटेन कर लिया, मीन्स द सर्वेंट ऑफ द अटेन, मीन्स जिसका नाम मतलब था सर्वेंट ऑफ गॉड अटेन। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू न्यू सिटी ऑफ अखेटाटेन। अब उन्होंने अपनी सिटी जो थी वो भी रिलीजियस कैपिटल थेब्स से चेंज करके कहाँ कर दी? नई सिटी में, अखेटाटेन में। ओके, और उस सिटी को अब क्या, अब जो है प्रेजेंट डेट में नोन है नाउ एज अमरना। उस सिटी का नाम अब आज की डेट में अमरना है, अमरना। ओके, ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमुन, अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। अब इसी इन्होंने अखेनाटेन मीन्स जो एमेनहॉटेप IV है, डू नॉट गेट कन्फ्यूज। आपने इन नेम्स को याद रखना है, इनको आप कॉपी पेन करके जॉट डाउन भी कर सकते हैं, इनमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। एमेनहॉटेप III हैं, उनके बेटे एमेनहॉटेप IV हैं और वो ही अखेनाटेन है। क्योंकि अब इनका नाम इन्होंने चेंज क्यों किया? क्योंकि इन्होंने अटेन गॉड को वर्शिप किया था, तो इन्होंने अपना नेम चेंज करके अखेनाटेन कर दिया। ओके, एंड अपनी सिटी का नाम अखेनाटेन रख दिया, जिसको आज की डेट में अमरना के नाम से जाना जाता है। नाउ ही फर्दर शॉक्ड। अब और लोगों को शॉक किससे, एक और शॉक क्या दिया? अपनी कंट्री, शॉक द कंट्री, जो कंट्री के लोग थे उनको कैसे शॉक कर दिया? बाय अटैकिंग अमुन। अमुन इज़ अ मेजर गॉड। ही स्मैश्ड हिज इमेजेस, उनकी जो मूर्तियाँ थी उनको स्मैश कर दिया, तुड़वा दिया। एंड तो उनके जो टेम्पल्स थे गॉड अमुन के, उनको भी क्या कर दिया? तोड़ दिया। नाउ
It must have been a horrific time, said Ray Johnson. Now, director of the University of the Chicago Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes. So, रे जॉनसन जो कि डायरेक्टर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर में, शिकागो में है जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो है, उसकी डायरेक्टर हैं रे जॉनसन. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बारे में कमेंट किया है. उन्होंने क्या कहा है कि इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, कि उस समय का ये बहुत हॉरिफिक टाइम होगा. और क्यों होगा? द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड एंड देन अखेनाटेन वेंट अ लिटिल वैकी. अब क्योंकि जो फैमिली इतने टाइम से रूल कर रही थी सेंचुरीज से, वॉज कमिंग टू एन एंड, क्योंकि अब इसका एंड हो गया था. इस फैमिली का, फेरा फैमिली जो थी वो उसका एंड हो गया था. एंड अखेनाटेन वेंट अ लिटिल वेकी. वेकी मीन्स मैड, ऑड, सनकी हो जाना जिसे हम कहते हैं. और क्योंकि अखेनाटेन अब थोड़ा सा सनकी हो गया था, तो उन्हें अब लग रहा था कि ये फैमिली का बिल्कुल एंड आ गया है. तो अब उसके बाद, लेकिन आफ्टर अखेनाटेन्स डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड सेमेनकारे appeared briefly and exited with hardly a trace. Exited, not excited. Exited with hardly a trace. Now, after his death, एक मिस्टीरियस रूलर आए, क्योंकि वो तो वेकी हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी. तो अखेनाटेन की डेथ के बाद मिस्टीरियस रूलर नेम सेमेनकारे ही अपीयर ब्रीफली. अब वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आए और ऐसे ही एग्जिटेड मीन्स उनकी डेथ होगी. हार्डली अ ट्रेस मीन्स कोई भी उनका पता ही नहीं चला कुछ डेथ के बारे में, कब आए और वो कब चले गए. विदाउट एनी ग्रेट अचीवमेंट उनकी डेथ भी हो गई. नाउ एंड देन अ वेरी यंग टुटनखटेन टुक द थ्रोन. अब उनकी डेथ के बाद एक यंग टुटनखटेन ने थ्रोन, सिंहासन संभाला. किंग टट एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे, और जिनको हम आज की डेट में किंग टट के नाम से जानते हैं. द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टुटनखामोन. और उन्होंने भी अपना नेम अब टुटनखटेन से टुटनखामोन रख दिया, जिसका मीनिंग है लिविंग इमेज ऑफ अमुन. मीन्स अमुन की जीती जागती इमेज, जिसको हम कहते हैं मूर्ति, प्रतिमा. एंड ओवरसॉ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज. He resigned for about 9 years and then died unexpectedly. Now, oversaw means supervised. Now, अब उन्होंने रिस्टोरेशन किया किस चीज़ का? ओल्ड वेज को. मीन्स अब जो गॉड अमुन को उन्होंने इनसे पहले जो थी, जो सारे के सारे मूर्तियाँ, मंदिर सब बंद कर दिए थे. हमने प्रीवियस पैराग्राफ में देखा है. अटैक कर दिया था अखेनाटेन ने गॉड अमुन को अटैक कर दिया था. लेकिन अगेन फिर टुटनखटेन ने गॉड अमुन की ही जो मंदिर तुड़वा दिए थे, उन सबको इन्होंने दोबारा से पूजना शुरू कर दिया. एंड जो ओल्ड वेज थे, मतलब पुरानी पूजा पद्धति थी, उनको रिस्टोर किया, उनको रिस्टोरेशन कर दिया उनका. ही रेन्ड फॉर अबाउट 9 years. अब उन्होंने, अब रेन होता है मीन्स शासन करना, वहाँ पर रूल करना. सो ही रूल फॉर 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली. लेकिन उनकी डेथ, अब उनकी भी डेथ हो गई अनएक्सपेक्टेडली, जिसके बारे में पूरा चैप्टर है कि डेथ कैसे हुई. यही सब जानने के लिए अभी तक जो है रिसर्च चल रही है. नाउ, रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, टट इज़ वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट. हाउ मैनी नो वन नोज. The Egyptian mummy project, which began an inventory in late 2003, had recorded almost 600 so far and still counting. अब regardless जिसे हम कहते हैं कि without caring, regardless of his fame and speculation about his fate. अब टट को नहीं पता था, क्योंकि इतना तो उन्होंने रूल ही नहीं किया उनको, ये क्योंकि उनकी अनटाइमली डेथ थी. तो दैट्स वाई द राइटर सेज रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेथ. मीन्स किंग टट, उनका जो मम्मी है, वन मम्मी इजिप्ट में एक ऐसा मम्मी है जो इतना फेमस था, लेकिन उसने ये ग्रेटनेस को अपने लाइफ टाइम में इतना वो एन्जॉय ही नहीं कर पाया, उसके बारे में जान ही नहीं पाया. रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड स्पेकुलेशंस होते हैं गैस वर्क्स, अंदाज़ा लगा रहे हैं उसके बारे में, स्पेकुलेट कर रहे हैं सब कि क्या हुआ होगा, उनका भविष्य क्या है, उनका फेट क्या था. सो टट का मम्मी उन सब में से एक है, इजिप्ट में जो पड़ा हुआ है.
हाउ मैनी वी डोंट नो, कि कितने ममीज़ हैं, नो वन नोज़। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, वहाँ पर इजिप्ट में ममी जो इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट जो चल रहा है, विच बिगैन एन इन्वेंट्री इन 2003 में स्टार्ट हुआ है ये प्रोजेक्ट, एंड इट हैज़ रिकॉर्डेड 600 सो फार। 2005 की बात कर रहे हैं वो, कि 2005 तक 600 ममीज़ जो थे वो रिकॉर्ड कर चुके, ढूंढ चुके हैं, एंड स्टिल काउंटिंग। और अभी भी इन पे रिसर्च चल रहा है कि अभी भी कितने, उसके बाद कितने ममीज़ मिल चुके होंगे। The next phase scanning the mummies with a portable CT scan machine donated by the National Geographic Society Siemens। अब जो नेक्स्ट फेज था इसका वो क्या था, स्कैनिंग द ममीज़। अब ममीज़ की स्कैनिंग करो, मतलब उनको स्कैनिंग क्या होता है, स्कैनिंग होता है कि उनको एग्जामिन करो अच्छे से। ओके, सो अब वो स्कैनिंग हो रही है उनकी। So it was done by the portable machine. Portable होता है movable CT scan machine which was donated by the National Geographic Society and Siemens, its manufacturer। जो इस मशीन के मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने इसको डोनेट किया है, और उसी में अब इनकी स्कैनिंग चल रही है ममीज़ की। किंग टट इज़ द वन ऑफ द फर्स्ट ममीज़ टू बी स्कैन। और किंग टट का जो ममी था वो सब फर्स्ट ममी था जिसकी स्कैनिंग हो रही है, फर्स्ट टाइम किसी की स्कैनिंग हो रही है जिस ममी की, in death as in life, moving regally ahead of his countrymen। and in death as in life, चाहे वो death है या फिर life है, it was moving regally ahead। so regally means in a royal manner, regal manner में means in a royal manner। अब वो क्या कर रहा है, वो move कर रहा है ahead of his countrymen। तब भी डेथ के बाद भी जिंदा रहा, तब भी वो मूव कर रहा था, और डेथ के बाद भी वो इन अ रॉयल मैनर अपने लोगों के, कंट्रीमैन के आगे वो मूव कर रहा है, उनसे आगे चल रहा है, क्योंकि मूव कर रही है उसकी मम्मी, उस मशीन में ले जा रहे हैं उसे। सो नेक्स्ट, अ सीटी स्कैन, अ सीटी मशीन स्कैन द मम्मी अहेड टू मम्मी हेड टू टो, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। सीटी स्कैन मशीन में अब उसके टच के मम्मी को हेड से लेकर टो तक, मतलब सर से लेकर पाँव तक 1700 डिजिटल एक्सरे हुए उनके, इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन, वो भी क्रॉस सेक्शन में इतने सारे 1700 एक्सरेज हुए। टच हेड स्कैन इन 0.62 millimeters slices to register its intricate structures, takes on every detail in the resulting image। और उनका जो हेड था, ओनली हेड ही हेड का इतना माइन्यूट 0.62 मिलीमीटर, इतना पतला उनका स्लाइसेस, उनका मतलब माइन्यूटली इतना ज़्यादा उनके हेड का जो था सीटी स्कैन हुआ, जिसको वो कह रहे हैं कि इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। इंट्रिकेट क्या होता है, दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क्स जो होते हैं, ढांचे, मतलब हेड का जो है सीटी स्कैन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क होता है, तो उसको भी इट टेक्स ऑन एवरी डिटेल, दैट्स व्हाई ही सेज एवरी होता है वेरी स्ट्रेंज, विचित्र। सो उसकी जो है जब स्ट्रक्चर का इसका हुआ तो इट टेक्स एन ऑन एवरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, जब उसकी इमेज को किया तो उसकी बहुत ही ज़्यादा एवरी डिटेल्स मिली। ओके, विथ टच एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी। अब जब टच की एंटायर बॉडी को सिमिलरली रिकॉर्ड किया गया, दैट a team of specialists in radiology, forensics and anatomy began to probe the secrets that the winged goddess of a gilded burial shrine protected for so long। अब टेट की जब एंटायर बॉडी का जब इन्होंने एग्ज़ामिन किया तो व्हाट दे फाउंड, जो स्पेशलिस्ट थे, रेडियोलॉजी के स्पेशलिस्ट, फोरेंसिक्स के और एनाटॉमी डिपार्टमेंट के, वो सब ने जब इसका एग्ज़ामिन किया स्पेशलिस्ट ने, तो उन्होंने क्या प्रॉब होता है इन्वेस्टिगेशन करना, बिगेन टू प्रॉब मीन्स प्रॉबिंग इज इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटिंग, टू प्रॉब द सीक्रेट्स। तो उन्होंने क्या सीक्रेट को इन्वेस्टिगेट किया, दैट कि विंग्ड गॉडेस, एक पंखों वाली जो गॉडेस थी, ऑफ अ गिल्डेड बरियल श्राइन, मीन्स चमकते हुए श्राइन में, मीन्स अ प्लेस ऑफ वर्शिप। अब उनकी बॉडी के साथ क्या था, एक प्लेस ऑफ वर्शिप था, एक छोटा सा पूजा स्थल था जो प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, जो वहाँ अभी तक सुरक्षित रखा गया था, प्रोटेक्टेड सेव्ड रखा गया था अभी तक, ओके रखा गया था।
The night of the scan, workman carried Tut from the tomb in his box. And the night, the scan and the workman carried Tut from the tomb in his box. अब उसको वापस बॉक्स में कैरी कर दिया उन्होंने. Like pall bearers, they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside. अब इतना गहराई में हमने पढ़ा था 26 फीट गहराई में उनका जो टूम था वो रखा गया था. सो अब क्या किया, लाइक पॉल बियरर्स होते हैं जो लाश को कैरी करते हैं, उनको बोलते हैं पॉल बियरर्स. सो दे पीपल वर कैरिंग इट, जो कॉफिन्स को उठाते हैं जो पॉल बियरर्स. तो उन्होंने क्या किया, पॉल बियरर्स की तरह दे क्लाइम्ड अ रैम्प. अब उन्होंने रैम्प को क्लाइम किया ना, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, जहाँ उसकी कॉफिन के जो रखने के लिए जो प्लेस था जो गहराई में था, तो स्टेयर्स थी वहाँ पर. इनटू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड, और उसमें क्या था, देयर वॉज सैंड ऑल्सो. स्वर्लिंग मीन्स फॉर्मिंग एडीज, मीन्स इतना ज़्यादा भंवर सा बन जाता था. जैसे जब उन्होंने खुदाई की थी तो वो जैसे स्वर्लिंग वे में था, इतना ज़्यादा सैंड से बाहर क्या बन गया था, भंवर सा बन गया था. देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर. और उसके बाद वो कैसे आए, ऊपर आए फिर हाइड्रोलिक मशीन से. हाइड्रोलिक मशीन मीन्स एक लिफ्ट होती है जो हवा से जो पानी से चलती है, विंड एंड लिक्विड से चलती है. हाइड्रोलिक्स मीन्स जो लिक्विड से चलती है, लिफ्ट. इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, जिसने स्कैनर को, अब स्कैनर के साथ वो अटैच था, ठीक है. तो उससे वो लोग उन्होंने क्लाइम किया. ओके, 20 मिनट्स लेटर 2 men emerged. नाउ अब 20 मिनट्स हो गए तो 2 लोग आए वापस. emerged मीन्स came. सो दीज पीपल दे केम आउट. अब वो जो नीचे उसको ले जा रहे हैं ट्रेलर से नीचे, मशीन बॉडी को रखा, अब 2 लोग वापस आए. दे केम बैक, दे emerged. Sprinting for an office nearby, and they sprinted for an office. Sprinting is they are running fast, तेजी से दौड़ रहे हैं उस. और sprinting means running fast for an office nearby, कि आसपास कोई ऑफिस हो. and return with a pair of white plastic fans, और उसके बाद वो प्लास्टिक फैंस के साथ वापस आए. मीन्स वहाँ पर उन्हें इतनी गर्मी लग रही थी, मीन्स दे वर लुकिंग फॉर द फैन, और आसपास उन्होंने जगह देखी और फिर उन्हें क्या गर्मी लग रही थी, शायद मशीन बंद हो गई थी, तो उसको फिर उन्होंने क्या किया, उसको फ़ैन लेके आया और फिर फ़ैन से उन्होंने हवा की. द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ द सैंड इन अ कूलर फैन. अब वो फैंस क्यों लेके आए, शायद ये जो $1 million स्कैनर मशीन थी उनकी, उसमें उसने क्विट कर दिया था, मतलब उसने चलना बंद कर दिया था मशीन ने, बिकॉज उस कूलर फैन के अंदर क्या हो गया था, सैंड, मिट्टी चली गई थी. कर्स ऑफ द फरा जोक्ड द गार्ड नर्वसली. अब एक गार्ड ने जो वहाँ पर था उसने क्या किया, एक मजाक में कहा कि ये ज़रूर इस फरा का कर्स है, वो हमें बद्दुआ दे रहा है, कर्स कर रहा है, हमें कर्स कर रहा है मीन्स जिसे हम कहते हैं बद्दुआ दे रहा है, श्राप देना. क्यों, क्योंकि हम उनकी डेड बॉडी के साथ, उनके मम्मी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं. तो उनमें से एक जो गार्ड था उसने जोक करते हुए नर्वसली ये जोक्ड वे में कहा. ओके, इवेंचुअली द substitute fans worked well enough to finish the procedure, and eventually means it worked. Eventually means finally the substitute fans जो थे, जो लेके आए थे वहाँ मशीन अपने आसपास के ऑफिस से, सो उसने ठीक काम किया. मीन्स उन्होंने हवा चलाई तो उससे मशीन जो थी वो चल पड़ी, और इट वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर. अब वो इतना जो काम कर रहे हैं बॉडी को वापस रखने का, वो काम जो है ठीक से हो गया. After checking that no data had been lost, the technicians turned Tut over to the workmen who carried him back to his tomb. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the Pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. Now after checking कि सारा डेटा जो है उसमें से कुछ खोया तो नहीं, सब कुछ था, अभी उन्होंने वो रख दिया था. अब टट की जो बॉडी थी, वर्कमैन और टेक्नीशियंस, उन सब ने क्या, उन सबको जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने अब इनको वर्कमैन को ये बॉडी दे दी. हु कैरिड हिम बैक टू द बैक हिज टोम. अब
वो कॉफिन तो रख ही दिया था नीचे, अब उन्होंने उसकी बॉडी को भी नीचे रख दिया वर्कमैन ने। लेस देन 3 hours आफ्टर द रिमूवल ऑफ हिज आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन। अब टट की बॉडी जो 3 hours पहले निकाली गई थी, अब 3 घंटे की जो मेहनत थी उसमें लेस देन वी कैन से दैट 3 hours द बॉडी वॉज put back to the place from where they have taken it out and where the funerary priest had laid this body. So narrator says that now it is resting in peace. Okay. Back in the trailer, technicians pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. A grey hat took shape from a scattering of pixels, and the technician spun and titled it in every direction. Sorry, tilted it in every direction. Now back in trailer, जब उसका ट्रेलर हुआ गया, अब बैक जब ट्रेलर में आए तो एक टेक्नीशियन ने क्या किया, ही पुल्ड अप एस्टॉनिशिंग इमेजेस। अब किंग टट की जो थी बहुत एस्टॉनिशिंग मीन्स हैरान कर देने वाली, एस्टॉनिशिंग मीन्स टू सरप्राइज पीपल। एस्टॉनिशिंग इमेजेस को उन्होंने अब कंप्यूटर स्क्रीन पर उतारा। अ ग्रे हैड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स। अब उसके जो पिक्सल्स थे, जो कैमरा के पिक्सल्स थे, उन्होंने अब क्या किया, उससे उनके हेड का जो ग्रे हेड टुक शेप, अब उसने शेप लेनी शुरू की। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। अब उसको स्पन किया, घुमाया और उसको स्पिन किया जैसे घुमा देते हैं, एंड उसको हर डायरेक्शन से उसकी बॉडी को टिल्ट, टेढ़ा किया, सीधा किया और उसकी पूरी की पूरी शेप दिखाई। नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास। अब एनाटॉमी क्लास होती है जहाँ पर डॉक्टर्स की जो क्लास होती है उसे एनाटॉमी क्लास कहते हैं, जहाँ पर ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स मीन्स बॉडी स्ट्रक्चर्स को माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एनाटॉमी क्लास। डॉक्टर्स की क्लास होती है जो, जहाँ पर MBBS स्टूडेंट्स जो है स्टडी करते हैं बॉडीज़ के बारे में। सो अब जो नेक की वर्टिब्रे थी वो इतनी क्लियर दिख रही थी, वेन्स जो थी इतनी क्लियर दिख रही थी जैसे क्लास में स्टूडेंट्स को दिखाई जाती है। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड। अब अदर इमेजेस जो इतना माइन्यूट उसका ऑब्जर्वेशन किया है कि अब ईच एंड एवरीथिंग वाज क्रिस्टल क्लियर। अब उनके हैंड की भी दिख रही थी, व्यू ऑफ द रिब केज एंड द ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कल भी अच्छे से दिख रहा था, स्कल के हर पार्ट को वो ईजीली अब देख सकते थे। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। नाउ दिस टाइम द प्रेशर वॉज ऑफ, अब क्योंकि सब कुछ उन्होंने देख लिया उसके बारे में। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, ज़ाही हवास smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. Now अब ज़ाही हवास बड़े स्माइल करते हुए उन्होंने कहा थैंक गॉड कि नथिंग वॉज विजिबली रिलीव्ड। अब वो अच्छे से रिलीव हो गए, मीन्स उन्होंने चैन की सांस ली कि कुछ भी गलत नहीं हुआ, सीरियसली रॉन्ग, नथिंग हैड गॉन रॉन्ग। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड, he said. He said that he didn't sleep and he was so worried, but now I think I will go to sleep. He was worried कि कुछ गलत ना हो जाए, मम्मी का अगर एक भी पार्ट टूट जाता है या कुछ उसमें प्रॉब्लम हो जाती तो this was all was going that all was going wrong. So the same he said that now I think I will go to sleep. अब वो राहत की सांस ली और अब शांति से। So ये पिक्चर है जिसमें मोरल इन किंग टट्स टॉम शोइंग किंग टट विद ओरिसिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। ये दोनों गॉड्स हैं, मोरिसिस एंड कौन सी किंग है ये, ओरिसिस के साथ है। इनकी टॉम में किंग टट है और दूसरे ओसिरिस है। ही इज़ द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। जैसे हम कहते हैं हमारे गॉड, जैसे हम यमराज कह सकते हैं, डेथ के बाद जो मृत्यु के देवता होते हैं, तो उनके ओसिरिस गॉड हैं जो उनको डेथ के बाद शायद ले गए होंगे। ऐसा कुछ पेंटिंग मोरल जो उनकी वॉल पेंटिंग बनाई गई है उसमें ये ऐसी पिक्चर थी जो यहाँ पर एक्सप्रेस की गई है। आई थिंक द लेफ्ट साइड इज़ किंग टट एंड द राइट साइड इज़ ओसिरिस। Now comes the next page. By the time we left the trailer, descending metal stairs to sandy ground, the wind had stopped. The winter air lay cold and still like death itself. In this valley of the departed, just above the entrance to Tut's tomb, stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. So by the time we means
Zahi Awas, he says, we left the trailer, means they kept that. By the time they left it, so what happened? They say that descending metal stairs to the sandy ground, their metal stairs जो थी अब वो सैंडी ग्राउंड में नीचे जाई थी. द विंड हैड स्टॉप, अब हवा भी चलने बंद हो गई. एंड द विंटर एयर, जो सर्दियों की ठंडी हवाएं थी, इट ले कोल्ड, अब ठंडी हो गई. एंड स्टिल लाइक डेथ, जैसे कि डेथ होती है, बिल्कुल ठंडी शांत. इन दिस वैली ऑफ डिपार्टेड, डिपार्टेड मीन्स जहाँ पर किंग टट की बॉडी है, तो डिपार्टेड मीन्स उनकी जो वैली है वहाँ पर अब हवा भी मृत्यु की तरह बिल्कुल शांत हो गई, ठंडी हो गई है. विंटर एयर. ओके. जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टट्स टूम स्टूड ओरियन, और उनके अब ऐसा लगता है कि एंट्रेंस जहाँ पर टट का टूम है वहाँ के एंट्रेंस पे देयर इज ओरियन. ओरियन इज देयर स्टूड द ओरियन. ओरियन इज द कॉन्स्टलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्ट्स न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस. अब उनकी जहाँ पर बॉडी है तो ऐसे है कि वहीं पर ओरियन है. ओरियन मीन्स अब इजिप्शियन पीपल बिलीव करते हैं कि इनका जो गॉड हैं, सोल गॉड हैं, ओसिरिस हैं. और वो कौन है? आफ्टर डेथ जो हमें लेके जाते हैं. सो ही इज़ वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, मीन्स किंग टट की बॉडी को वहाँ से ऊपर से वो देख रहे हैं, मतलब कॉन्स्टलेशन है ऊपर, और ओसिरिस जो है ओरियन है, ये कॉन्स्टलेशन है. तो वहाँ से जो गॉड हैं इनके, मृत्यु के देवता ओसिरिस हैं, वो देख रहे हैं किसको? किंग टट की बॉडी को वहाँ से वॉच कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं निहार रहे हैं. ओके. सो दिस इज़ द रियल सोर्स ऑफ फ्रॉम नेशनल जियोग्राफिक चैनल वॉल्यूम 207 नंबर 6. दिस इज़ द सोर्स रिपोर्ट फ्रॉम दिस चैनल. So today we completed our chapter, that is discovering Tut. The saga continued.